I welcome you all in the name of Jesus in the house of the Lord. हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। In the house of the Lord, I welcome you all. प्रभु के घर में I welcome you all. मैं आपका स्वागत करता हूँ। Let's clap and thanks God for the wonderful time that God has given us. तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद दो ये समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। Hallelujah. हालेलुया। You are not looking excited today. आप उत्सुक नहीं दिख रहे हो आज। Say the truth. Are you excited? क्या आप उत्सुक है? The smile on your face is missing. आपके चेहरे की हंसी गुम हो गई है। मुस्कुराहट. मुस्कुराहट गुम हो गई है। हंसना और मुस्कुराने में फर्क है. मैं नहीं चाहता आप हंसो. I want you to just smile. Hallelujah. भाई चाहते हैं कि आप मुस्कुराए Because the Lord gives us good joy. क्योंकि परमेश्वर हमें आनंद देता है। Hallelujah. There is joy in the house of the Lord. परमेश्वर के भवन में आनंद है। Yes, you should receive the blessings. Hallelujah. हालेलुया। Today God is going to speak to us. आज प्रभु आपसे बातचीत करने वाला है। And I have meditated on the 7 blessings of Abraham. और मैंने आपके लिए 7 आशीषें जो अब्राहम की है वो आपके लिए लाया है। Hallelujah. You might know all some of the blessings, कुछ आशीषें आप जानते हैं or you might have forgotten some of the blessings. और कुछ आप भूल चुके हो। You know who is Abraham? आपको मालूम है अब्राहम कौन है? Who is Abraham? अब्राहम कौन है? How do we? Yes, very nice. How do we address Abraham? Who is Abraham? Abraham is the father of believer. हम अब्राहम को कैसे संबोधित करते हैं? वो हमारे पूरे देश में जो है विश्वासियों का पिता है। Because his faith was very high. क्योंकि उसका विश्वास बहुत ऊंचा था। Right? बराबर है? Abraham's faith was very high because he was so obedient to God. अब्राहम का विश्वास ऊंचा था क्योंकि वो आज्ञाकारी था He परमेश्वर। was walking with God. वो परमेश्वर के साथ चलता था। Very closely he used to walk with God. बहुत नजदीकी से वो प्रभु के साथ चलता He था। used to listen the voice of God. वो परमेश्वर की आवाज को सुनता था। That's why God gave him many blessings. इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को कई आशीषें दी। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, when we walk with God, जब हम प्रभु के साथ चलते when we हैं, hear the voice of God, जब हम प्रभु की आवाज को सुनते हैं, when we obey God's word, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते आज्ञा मानते हैं, God gives us blessing. तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। Hallelujah. हालेलुया। So we have received blessings from God. तो हमने परमेश्वर से आशीषों को पाया That's why we are in the house of the Lord and giving him thanks. और इसलिए हम परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं और हम उसे धन्यवाद देते हैं। Despite of all the odds of our life, कई सारी बुराइयों के बदले भी, yeah, despite all the difficult conditions of our life, कई सारी समस्या के बदले भी we are here to give thanks to God. हम यहाँ पर है कि हम प्रभु को धन्यवाद दें। Hallelujah. हालेलुया। So we are going to study the blessings in very short. This just is going to be a reminder call for you. संक्षेप में हम परमेश्वर की आशीष को एक प्रकार का समझेंगे और यह आपके लिए फिर स्मरण करने के लिए A reminder call that if Abraham can receive the blessings, why not you can receive the blessings? वो स्मरण करने के लिए कि अगर अब्राहम को आशीषें मिली तो हमें क्यों ना आशीषें मिल सकती। Hallelujah. So let's meditate on the word of God. तो इसलिए हम आइए हम परमेश्वर के वचन का मनन करें। The prisms of, you know what is a prism? आपको मालूम है एक जो प्रिज्म होता है, जो एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कई प्रकार की रोशनियां दिखती है, मालूम है आपको? Science students in science experiment class विज्ञान के जो विद्यार्थी है और विज्ञान जो जानते हैं use वो समझते prism, हैं। use prism वो उस प्रिज्म को यूज करते हैं to study the reflections of light. कि जो ध्वनि का जो रिफ्लेक्शन होता है उसको देखने के लिए। Yes, there is a prism and the light rays is passed through it, and through the light there are 7 different colors of light passing. त्रिकोणी आकार में वो होता है, उसमें से जो लाइट है वो जाती है और वापस उसमें आती है। Yes. आपने देखा होगा, ये पढ़ा भी होगा। There are 7 different lights that pass through it. उसमें 7 प्रकार की रोशनी है, उसमें से जाती है। I'll try to show it to you.
मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, because you are looking like you never know what is a prism. क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपको मालूम नहीं कि प्रिज्म क्या है। Can you see this? How many light is penetrating in the prism? क्या आप देख रहे हैं? One light is penetrating. Yes. And how many reflections are coming? Yes. So we are going to study the blessings in the life of Abraham as a prism. हम इस तरीके से आशीषों को देख रहे हैं जो अब्राहम ने पाई है। Yes. The prism of blessing, you can say. और ये है प्रिज्म ऑफ ब्लेसिंग, आशीषों का त्रिकोण। Sevenfold blessings of Abraham. 7 प्रकार की आशीषें जो अब्राहम ने पाई। Yes. In Genesis, God made a covenant with Abraham, उत्पत्ति में परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा बांधी, promising him blessing that would not only impact his life but also the extended future generation which would be coming. सिर्फ उसी के लिए नहीं पर आने वाली उसकी वंश के लिए भी परमेश्वर ने आशीषों को दिया। The blessing serves as a testament to God's faithfulness. और ये जो आशीषें है वो ये दर्शाती है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। His generosity, उसकी उदारता को बताती है, His provision उसके उपलब्धियों को बताती है for His people. उसके लोगों के लिए। So let us understand what God did with Abraham. तो इसलिए हम समझे अब्राहम के साथ परमेश्वर ने क्या किया। The first blessing is blessing of abundance. सबसे पहली आशीष जो है बहुतायत की आशीष। Say blessing of abundance. बहुतायत की आशीष, ब्लेसिंग ऑफ अबंडेंस। See, if you repeat today, you will get the 7 blessings. अगर आप उसे दोहराएंगे तो आपको पूरी 7 आशीषें If you listen, you will know the 7 blessings. अगर आप सुनेंगे तो 7 प्रकार की आशीषें जानेंगे। The choice is always yours. और चुनाव आपका है। You want to receive, you have to say. अगर आपको लेना है तो आपको बोलना है। If you want to just increase your knowledge, you have to listen. अगर आपके ज्ञान को वृद्धि करना है तो सिर्फ सुनना है। The choice is, चुनाव आपका है। hallelujah. Say abundance blessing. अबंडेंस ब्लेसिंग, The blessing of abundance. बहुतायत की आशीषें। If you read in the word, Genesis अगर उत्पत्ति में हम पढ़ेंगे 13:2, 13:2 में, now Abraham was very rich in livestock, in silver and in gold. अब्राहम बहुत धनी था सोने और चांदी से। Yes, but if you see when Abraham left his father, did he had this much of gold? जब उसने अपने पिता के घर को छोड़ा तो उसके पास सोना चांदी थी, But now he is having it. पर अभी उसके पास आशीषें है। God's promise of material wealth and spiritual depth. परमेश्वर की आशीष संसारिक तौर से और आत्मिक तौर से पाई जाती है, Spiritual depth. आत्मिक गहराई में पाई जाती His generosity and provision for his people. है। उसकी उदारता और उसका उपलब्धि उसके लोगों के लिए। God provided abundance of Abraham's material needs, demonstrating God's faithfulness to Abraham. परमेश्वर ने बहुतायत की आशीषों को बताया उदाहरण देकर और उसके जीवन में कार्य करके। Hallelujah. Let's read in Hindi. What does it say? हिंदी में हम पढ़ेंगे। Hallelujah. So he is a rich man now. अब्राहम धनी व्यक्ति था। The promise of abundance extended beyond physical needs. उसकी आशीषें संसारिक तौर के ऊपर थी। Hallelujah. The abundance was beyond physical possessions. उसकी आशीषें जो थी बहुतायत की थी और उसके सहने के बाहर थी। The physical need, what he wanted, God gave him beyond that. जितनी आवश्यकता थी उससे ज्यादा परमेश्वर ने उसे दिया। Hallelujah. A man need food, clothes and shelter. एक व्यक्ति को आवश्यकता होती है घर, रोटी कपड़ा रोटी मकान. कपड़ा मकान, But God gave him gold and silver. पर परमेश्वर ने उसे सोना चांदी दी। Hallelujah. So that is beyond the expectation of Abraham, because that is called abundance blessing. वो उसके सोचने के बाहर था और इसलिए उसको कहते हैं बहुतायत की आशीष। God gave him spiritual enrichment. और परमेश्वर ने आत्मिकता से भी उसे बढ़ाया। Hallelujah. Abraham was leading the spiritual journey with God.
अब्राहम परमेश्वर के साथ आत्मिक रीति पे जुड़ा हुआ था। He was living a spiritual journey. He was traveling a spiritual journey, leading him into a deeper relationship with God's understanding. वो एक ऐसी यात्रा कर रहा था प्रभु परमेश्वर के साथ कि वो परमेश्वर के साथ चलता था और आशीषों को पाता था। Genesis 15:1 says, उत्पत्ति 15:1 कहता है, after this thing the word of the Lord came to Abraham in a vision. Fear not, Abraham, I am your shield. Your reward shall be very great. उत्पत्ति 15:1 में लिखा है कि इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। This is the blessing of abundance God is giving Abraham. ये बहुतायत की आशीष है जो परमेश्वर ने अब्राहम को दी, And a relational fulfillment. और एक प्रकार का संबंध परमेश्वर ने उसके साथ A बनाया और relational पूरा किया। fulfillment with God. एक संबंध बनाकर उसे पूरा किया। God made a meaningful relation with Abraham. परमेश्वर ने एक अच्छा संबंध अब्राहम के साथ बनाया Supporting him. जिससे वो उसकी सहायता करे। Hallelujah. The relation enriches, remind us the importance of community and fellowship in our journey of spiritual life. ये जो संबंध परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बनाया वो ये बताता है कि उसकी यात्रा प्रभु के साथ कितनी पकड़ थी, और वो ही हमें बताती है कि हमें जीवन में कैसे चलना है। Genesis 18:19 says, for I have chosen him, God chose Abraham, that he may command his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice. To the Lord may bring to Abraham what he has promised him. Hallelujah. क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो अपने पुत्र और परिवार को जो उसके पीछे रह जाएंगे आज्ञा देगा कि वे यहोवा के मार्ग में अटल बने रहे और धर्म और न्याय करते रहे, ताकि जो कुछ यहोवा ने अब्राहम के विषय में कहा उसे पूरा करे। Hallelujah. God is not only taking care of Abraham, but he is talking about the children who are yet to come. सिर्फ परमेश्वर अब्राहम के विषय नहीं कह रहा है, पर उसके आने वाले वंश के बारे में, उसकी पीढ़ी के बारे में भी बता रहा है। Hallelujah. You are following God's path. आप परमेश्वर के राह पे चल रहे हैं। The promises of God is for you. परमेश्वर की वाचा आपके लिए है। But when you get in abundance, पर जब आपको बहुतायत से मिलता है, the promises of God passes from your generation to the other generation. तब परमेश्वर की आशीष आपसे आपके आने वाली पीढ़ी और पीढ़ी तक होती है। Hallelujah. हालेलुया। Who is faithful? कौन विश्वास योग्य है? Father is faithful. पिता विश्वास योग्य है, The son is receiving the blessings because of the father. और पुत्र को आशीष मिल रही है पिता के द्वारा। You are faithful, your children will receive the blessings. आप विश्वास योग्य है, आपके बच्चों को आशीष मिलेगी। Hallelujah. If you are excited, clap for God. अगर आप उत्सुक है तो परमेश्वर के लिए तालियां बजाएं। Yes. Because of your work, the children and the generation is going to bless. God is going to give them livestock in abundance. क्योंकि आपके कार्य और आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर बहुतायत की आशीष आपके बच्चों को देने जा रहा The second blessing, है। दूसरी आशीष, the blessing of protection. सुरक्षा की आशीष। God assured Abraham for his divine protection. परमेश्वर ने अब्राहम से उसकी सुरक्षा करने की आशीष को दिया। Hallelujah. Remember when Abraham started to go his journey, start his journey, जब अब्राहम ने अपनी यात्रा को शुरू किया, he was going with his limited resources. वो बहुत कम अपनी जो धन था उससे वो चल रहा था। Yes. And he was not having an army. उसके पास बड़ा सेना नहीं थी, Not many people to be protected or can keep him protected. कई ज्यादा लोग नहीं थे जो उसे अपने सुरक्षा में रख सके। The blessing of protection is given by God only. सुरक्षा की आशीष परमेश्वर की ओर से आती है। Hallelujah. Your life is protected because God has promises. आपके जीवन सुरक्षित है क्योंकि परमेश्वर ने आपको बताया है। As a Christian, we know many promises of God. क्रिश्चियन होने के नाते, मसीह होने के नाते हमें बहुत सारी वाचाएं मालूम है। But if we don't realize and we don't come in a covenant of the promise, we don't remember the promises, won't work in your life. अगर हम उसे देखेंगे नहीं या हम उसे समझेंगे नहीं तो वो हमारे जीवन में काम नहीं करता। It is just as you have knowledge, but you are not using the knowledge. वो वैसा है कि आपके पास ज्ञान है पर ज्ञान का आप उपयोग नहीं कर रहे हैं। God gave you promises. परमेश्वर आपको
आशीषें देता है, आज्ञा देता है। Yeah, the promise is not fulfilled because we are not understanding the promises. वो आज्ञा पूरी नहीं होती है क्योंकि हम उसे समझ नहीं पाते। The blessing of protection. सुरक्षा की आशीष। We will go very fast because we have to study 7 points. हम जल्दी चलेंगे क्योंकि 7 आशीषों को हमें पढ़ना है। Physical safety, spiritual security and emotional well-being. ये आशीष जो है, जो तुम्हारी शारीरिक सुरक्षा, आपके Physical safety, spiritual security and emotional well-being. आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी जो इमोशनल होते हैं, जो आपके बिहेवियर होते हैं, उसके लिए पाई जाती है। Genesis 26:24 says, and the Lord appealed to him the same night and said, I am your God of Abraham your father. Fear not, I am with you and will bless you and multiply your offsprings for my servant Abraham's sake. This is God is saying. Hallelujah. उत्पत्ति 24:26 में अब्राहम से परमेश्वर कहता है कि डर मत, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। Yes. The blessing of protection says in Genesis chapter 12, 1-3. You can just write it down and read it later. This also says the blessings. I will bless those who will bless you, and him who dishonors you I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed. This is the promise of God. परमेश्वर की आशीष जो उत्पत्ति 12:1-3 में मिलती है, जो आप पढ़ सकते हैं, वो जो तुझे आशीष दे मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुम्हें श्राप दे मैं उन्हें श्राप दूंगा, और इस तरह से वहाँ पाया जाता है। And this is the example when you will understand when Abraham was going with his son for the sacrifice. ये वो समय है, उदाहरण जब परमेश्वर ने दिया जब अब्राहम अपने बच्चे को लेकर कुर्बानी के लिए जा रहा था। In Genesis 22:13 and 14. उत्पत्ति 22:13-14 में लिखा है। Yes. So now we are in the third blessing. The third blessing is blessing of favor. एक तीसरी आशीष जो हम देख रहे हैं वो है ब्लेसिंग ऑफ फेवर। Everybody say favor. Blessing of favor. Yes. कृपा दृष्टि, प्रभु की कृपा दृष्टि की आशीष। Krupa, the favor of God. प्रभु की कृपा। Do we need the favor of God? क्या हमें प्रभु की कृपा की आवश्यकता है? So you will get the favor of God. तो आपको परमेश्वर की कृपा दृष्टि जरूर मिलेगी। Hallelujah. The third blessing is the blessing of favor. तीसरी आशीष है परमेश्वर की जो कृपा दृष्टि की आशीष। Abraham received God's favor, अब्राहम को के ऊपर परमेश्वर की कृपा थी, gathering him success, divine guidance and supernatural provisions. और उसके ऊपर परमेश्वर का आशीष था। परमेश्वर ने उसके ऊपर एक बड़ी आशीषों को रखा था। Yes, in Genesis 12:1 we already read God gave him assurance. उत्पत्ति 12:1 में हमने देखा है कि परमेश्वर ने उससे एक वाचा बांधी। Yes, God gave him assurance. And second, supernatural provision in the times of need. और अलौकिक आशीष जब उसकी आवश्यकता के अनुसार उस पर दी गई। In your life, did you ever experience you're doing some work regularly, but in the normal time it is done very quickly with you only? आपने अपने जीवन में ये अनुभव किया होगा कि आप कुछ काम कर रहे हैं पर कभी-कभी वो काम अचानक हो जाता है। If you go in an office, people are in a line and queue, but just for you have very quickly it is done for you. आप ऑफिस में जाते हैं, बड़ी लाइन कतार होती है पर आपका काम तुरंत हो जाता है। Did you ever experience that? क्या आपने ये अनुभव किया? Say loudly. Because that's the favor of God. क्योंकि ये परमेश्वर की कृपा दृष्टि है आपके ऊपर। The things which is normal, जो चीज साधारण है, that is for normal people. वो साधारण लोगों के। The thing which is abnormal, जो चीज असाधारण है, which is not happening with the others, जो दूसरों के साथ नहीं है, that happens with supernatural people. वो अलौकिक लोगों के साथ होती है। You are supernatural people having the favor of God. आप वो अलौकिक लोग हैं जो परमेश्वर की कृपा दृष्टि में पाए जा रहे हैं। Hallelujah. The promise of supernatural provision remind us that God is our provider. ये अलौकिक आशीष जो परमेश्वर
परमेश्वर देता है वो बताया जाता है कि हमारा प्रयोजन करने वाला परमेश्वर है, and He will provide all the riches we need by His glory. और वो हमारे लिए सब कुछ प्राप्त करेगा और देगा। Success and prosperity. सक्सेस और बहुतायत, Yeah, success and prosperity. Yes. Did Abraham receive success? क्या अब्राहम को यश मिला? Did Abraham receive prosperity? Yes, he was prosper. That's why he had so many things in abundance. उसके बाद बहुतायत की आशीष थी, इसलिए वो परमेश्वर के साथ था। Through God's favor, सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह Abraham के द्वारा। experienced and success and prosperity. अब्राहम ने अपने जीवन में अनुग्रह और यश को प्राप्त किया। Yes. Genesis 24:1 says, उत्पत्ति 24:1 कहता है, Now Abraham was old, well advanced in years, and the Lord has blessed him in all things. Hallelujah. This is the favor of God. अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों से उसको आशीष दी थी। In all things. हर बातों में परमेश्वर ने उसे आशीष दी। Say all things. कहे हर बातों में। Please, together. एक साथ हम कह के सब बातों में उसको आशीष दी थी। Now say, give me blessing in all things. अब कहे कि मुझे भी परमेश्वर सब बातों में आशीष दे। Say loudly, you're talking to God. जोर से कहे। Hallelujah. Yes, God will bless you because you're asking from the God who is living God. परमेश्वर आपको आशीष देगा क्योंकि आप वो प्रभु से मांग रहे हैं। So the first blessing was, पहली आशीष क्या थी? hallelujah, blessing of abundance. Second, बहुतायत की आशीष। दूसरी, protection. Third, hallelujah, you all passed. आप सब पास हो गए थे। Because of one candidate, whole the class passed. एक विद्यार्थी के कारण द्वारा सब विद्यार्थी पास हो गए। Yes? So now I want all of you to pass together in the next question. अभी मैं चाहता हूँ कि आप सब विद्यार्थी। The fourth blessing was blessing of multiplication. चौथी आशीष जो थी वो थी बढ़त की आशीष। Multiplication, you know? 2 into 2, 4 into 4. Yes. Maths is weak for our brother. But no problem, the class will help him out. That's why God says about fellowship. Fellowship gives us correction. Hallelujah. So God multiplied Abraham because it was the promises of God. परमेश्वर ने अब्राहम की आशीषों को दुगना और चौगुना किया क्योंकि परमेश्वर ने उसे We all know the story of Abraham and Sarah. अपन अब्राहम और सारा की कहानी को जानते हैं। Yes, Abraham had many children अब्राहम के पास बहुत बच्चे थे। before. Yes or no? Yes. He didn't have children. अब्राहम को संतान नहीं थी। But still God made a covenant and promised with him, you will multiply. तब भी परमेश्वर ने उसे आज्ञा वाचा बांधी और कहा कि तू धीरे रखो, तब भी परमेश्वर ने उससे वाचा बांधी कि तुझे संतान होगी। God blessed Abraham with numerous descents. परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी With many generations. कई संतानों की आशीष दी। This was spiritual faithfulness ये आत्मिक आशीष थी and relational expansion. और एक तरीके से उसके वंश को बढ़ाया। Second, legacy and influence. और तीसरी बात है कि बहुत सारे आशीषों से उसे बढ़त किया। Hallelujah. In Genesis 15:5 says, and he brought him outside and said, look towards heaven and number the stars. If you are able to number them, then he said to him, so shall you offsprings be. Hallelujah. See, God speaks to the one who didn't had any son.
5 में कहता है, परमेश्वर ने उसे बाहर लेकर गया और आसमान को दिखाकर कहा, ये तारों के समान मैं तेरी संतान को कर दूंगा। Hallelujah. God knew the heart of Abraham परमेश्वर अब्राहम के दिल को जानता था, because he was in a good relationship with God. क्योंकि वो परमेश्वर से उसके संबंध अच्छे थे, He was walking faithfully with God. वो परमेश्वर के साथ चल रहा था। So when we walk with God faithfully, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं विश्वास में, God understands our needs and desires and our expectations. तब परमेश्वर हमारी इच्छाओं को जानता है, हमारे कार्यों को जानता है और वैसा ही करता है। He understands it. वो जानता है, He studies us. वो हमें पढ़ता है। God studied Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम को पूरी रीति से पढ़ा था And he knew what Abraham was desiring because he had everything. और वो जानता था कि अब्राहम का विचार क्या है, क्योंकि उसके पास सब कुछ But था, he didn't have son. पर उसके पास बेटा He नहीं, didn't have children. उसके पास संतान नहीं थी। So God made a covenant and a promise with Abraham. तब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वाचा को बांधा Say blessing of multiplication. और तब उससे आशीष को दुगनी किया। You say blessing of multiplication. बोलो, दुगनी आशीषों, ब्लेसिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन। Hallelujah. The second thing, Abraham's descendants become a blessing to the nations, spreading God's love and truth to the ends of the earth. अब्राहम की आशीषें पूरे देश में भर गई। The descendants of Abraham, the children of Abraham. जो परमेश्वर की संतान थी वो फैल गई पूरे देश में। And what they are doing now, और वो क्या कर रही है? we are also the Abraham seeds, हम भी अब्राहम की संतान हैं। right? They are sharing the love of God. परमेश्वर के प्रेम को They बांट are रहे sharing the truth of God हैं, परमेश्वर के सच्चाई को बांट रहे हैं and impacting others' life. और दूसरे के जीवन को असर कर रहे हैं। See, one Abraham was so faithful. एक अब्राहम इतना विश्वासियों के थे। How many us can be faithful and bring many blessings in the kingdom of God? हम कितने जन विश्वासियों के रह के परमेश्वर के राज्य में और आशीषों को लाए। Hallelujah. One Abraham can receive 7 blessings. एक अब्राहम को अगर 7 ब्लेसिंग मिलती है, The blessings we also experience. जो हमें भी मिली है, How many more blessings we can receive from God? और कितनी आशीष हम परमेश्वर से ले सकते The हैं। blessings of multiplication. The third point in that is legacy and influence. और तीसरी बात उसमें ये है कि वंश बढ़ने की आशीषें। Abraham influences people. अब्राहम का जीवन लोगों को प्रोत्साहित करता है। Abraham influence, अब्राहम का जीवन दूसरे को प्रभाव करता है, impact others' life दूसरे के जीवन पर एक प्रभाव डालता and the है generations it impacted. और उसकी जो संतान है वो उस पे भी एक प्रभाव Genesis होता है। 17:7 says, उत्पत्ति 17:7 कहता है, and I will establish my covenant between me and you and your offsprings. Hallelujah. The covenant of God is established not only between Abraham and God, but also between the offsprings. और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ। Okay, कि मैं this तेरे- blessing was with Abraham, God, and the offsprings. 3 people. But in the communication, there are 2 people. ये जो थी आशीष अब्राहम के साथ थी और पीढ़ी से पीढ़ी तक उसकी संतान के साथ थी। Hallelujah. The blessing of multiplication. What the blessings Abraham got, we are also experiencing it. जो आशीष अब्राहम को मिली वो हमें भी मिल रही है और हम भी उसे अनुभव कर रहे हैं। Hallelujah. The next blessing is blessing of inheritance. एक चौथी जो ब्लेसिंग है वो है Inheritance. वंश। विरासत की आशीष। Say blessing of inheritance. विरासत की आशीष। बोलो, विरासत की। Hallelujah. Because of the Father, the Son is inherited. पिता के द्वारा पुत्र को विरासत की आशीष मिलती है। Hallelujah. Abraham family people got the blessing of inheritance because of Abraham. अब्राहम के द्वारा उसके लोगों को, उसकी संतानों को उसकी आशीषें मिली है। See, the promises of God is eternal. परमेश्वर की आशीष युगान युग है And this promises was eternal inheritance.
और ये युगानुयुग आशीष जो है विरासत में मिलती है। Hallelujah. This highlights the eternal life. ये हमारे आत्मिक जीवन को दर्शाती है। We are not the citizens of this world, we are the citizens of heaven. हम यहाँ के यात्री नहीं है, यहाँ की संतान नहीं है, हम अनंत काल के युग की संतान है। Eternal life, God covenant with Abraham extended beyond earthly blessings. परमेश्वर की आशीषें इस संसारिक आशीषों के ऊपर थी। Hallelujah. The eternal blessings. युगानुयुग की आशीषें। Philippians 3:20 says, फिलिप्पी 3:20 कहता है, but our citizenship is in heaven, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ. क्योंकि हमारी नागरिकता जो है इस संसार की नहीं है, पर उस युगानुयुग के जीवन की है जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाई है। Hallelujah. Because of Abraham, we all receive the promise of eternal inheritance. अब्राहम के द्वारा हमें विरासत की आशीषें मिल रही है। The fifth point पांचवी बात was inheritance. विरासत की आशीष। The sixth point is the blessing of revelation. प्रकाशन की आशीष। Hallelujah. हालेलुया। What is revelation? प्रकाशन क्या होता है? God's revealed His plan, His purposes, and Himself to Abraham. परमेश्वर ने अपने योजना, अपनी बातें अब्राहम को बताई, Because he was walking in the fellowship of God, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चल रहा था। so God revealed Himself on Abraham. और इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को अपनी पूरी योजना को बताया। This revelations was of three types. और ये जो प्रकाशन थे 3 प्रकार के थे। Divine revelation, अद्भुत प्रकाशन, intimate relationship, एक सहसंबंध परमेश्वर के साथ, and understand the divine will of God. और परमेश्वर की जो अद्भुत इच्छा है वो समझने की योजना। God revealed His plan to Abraham first. परमेश्वर ने अब्राहम से अपनी योजना को प्रकाशित किया। He spoke to His servant Abraham first. परमेश्वर अब्राहम से पहले बोला। What He said? Now the Lord said to Abraham, go from your country and your kingdom and your father's house to the land that I will show you. उत्पत्ति 12:1 में परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि तू उस देश को छोड़कर जो स्थान मैं तुझे देता हूँ वहाँ तू जा। Now listen, God is saying the land I will show you, but Abraham has not seen the land. परमेश्वर कहता है जो जगह मैं तुझे दूंगा, अब्राहम ने वो जगह देखा नहीं था। Still he is having faith on God. फिर भी वो परमेश्वर पे विश्वास कर Because रहा he था, heard the voice of God. क्योंकि उसने परमेश्वर की आवाज And को God सुना revealed था। plans to Abraham. जब परमेश्वर ने अपनी योजना पर अब्राहम पर बताई, See, the plans are already mentioned here. I will show you and I will make you a great nation. तब परमेश्वर ने वहाँ कहते हैं कि मैं तुझे बताऊंगा, दिखाऊंगा और तेरे द्वारा एक बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा। I will make you a great nation. और मैं तुझे एक बड़ा देश बनाऊंगा। Hallelujah. I will bless those who will bless you. मैं उससे आशीष दूंगा जो तुझे आशीष दे। When God is talking this to Abraham, जब परमेश्वर अब्राहम से ये बोल रहा है, Abraham where he is now? वो कहाँ है? He is in the father's house only. वो अपने पिता के घर में है। God is revealing His plans to Abraham. परमेश्वर अपनी योजना उसे बता रहा है। God is telling his what I am planning for you. वो बता रहा है कि मैं तेरे लिए क्या योजना बनाया है। Abraham has the sixth blessing, blessing of revelation, getting the heart of God, understanding the will of God. ये 6वीं आशीष है जब परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है प्रकाशन की आशीष, वो अपनी बातें अब्राहम पर प्रकाशित कर रहा है। Hallelujah. When Abraham was there in Genesis 22:1 and 2, the blessings understand the divine will remind us that God desired us to walk in obedience. जब उत्पत्ति 22 में अब्राहम है तो परमेश्वर उससे बात कर रहा है और वो अलौकिक आशीष के बारे में उसे बता रहा है। After these things, God tested Abraham and said to Abraham, ये सब बातें होने के पश्चात परमेश्वर अब्राहम से कहता है, "Here I am," he said. मैं यहाँ हूँ। Hallelujah. Take your son,
your only son Isaac. तू अपने बेटे को ले, एकलौता बेटा इसाक. Hallelujah. Now how many sons Abraham is having? अब्राहम के पास कितने बेटे हैं? Abhi. Only one. This is the test for Abraham. ये अब्राहम की एक परीक्षा थी. We all knew what happened. आपको मालूम है क्या हुआ? Whom you love, go to the land of Mohaira and offer him there as a burnt offering and on one of the mountains which I shall tell you. मोरिया पर्वत पर जा और जो बेटा तुझे प्रिय है उसे तू अपने साथ लेकर जा और वहां जाके मैं जो कहूंगा तू कर. Wow, this is very difficult task in the life of Abraham. ये बहुत बड़ी बात, मुश्किल बात अब्राहम के जीवन में है. Now many questions would come in the mind of Abraham. कई प्रश्न अब्राहम के जीवन में आ रहे हैं. Lord, what happened to the blessing you said I will have generation and nations in my name? प्रभु क्या होगा? तूने कहा कि मेरे पास इतना बड़ा देश होगा, इतनी आशीषें होगी. Where are the children? वो बच्चे कहाँ हैं? Where they are? कहाँ हैं? If I take my son and I'll give him offering, what will happen? अगर मैं मेरे बेटे को लेकर तुझे बलि चढ़ा दूंगा तो क्या होगा? Where will my generation continue? कहाँ मेरी संतान बढ़ेगी? Where is my abundance blessing? मेरी बहुतायत की आशीष कहाँ All है? the blessings we understand. Now Abraham will have a question mark. What is happening? अरे क्या होगा? यहाँ पे आपने इतनी आशीषें दी, अब कैसा होगा? My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, faithfulness is the key of every blessing with God. विश्वास योग्यता वो कुंजी है जो परमेश्वर से आशीषों को लेती है. Trusting God in all times. परमेश्वर पे हर समय पे विश्वास रखना ही Very important. बहुत महत्वपूर्ण है. The seventh blessing, और सातवीं the आशीष, blessing of reconciliation. वो आशीष जो परमेश्वर से हमें मिलाप कराती है. Hallelujah. The हालेलुया. blessing of reconciliation. मिलाप करने वाली आशीषें. Through Abraham's lineage, God initiated the reconciliation of humanity to himself. अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने मानव जीवन से हमारा क्या किया? मिलाप कराया. See what has happened, the foreshadow that ultimate reconcile through Jesus Christ. चौथा जो वंश चलता है, प्रभु यीशु का जन्म होना, उसके द्वारा परमेश्वर ने हमें मिलाप कराया. Jesus was born from the genealogy of Abraham. यीशु मसीह का पैदाइश होना अब्राहम के वंश से पाया जाता है. And because of Abraham, Jesus was there. अब्राहम के वंश के द्वारा ही प्रभु यीशु का जन्म हुआ. And that was the key of reconciliation of humanity with God. और वहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मानव जाति का फिर एक बार मिलाप कराया. There are 3 points in this. इसमें 3 बातें पाई जाती I'll हैं. just say it. The redemptive purpose, एक बात है कि छुटकारा, foreshadow of Christ, चौथा जो छाया है पर प्रभु यीशु का दिखाई देता है, and third is very important, invitation of restoration of our lives. और एक और बात जो हम देखते हैं कि हमें अपने आप को क्या करना है? बचाव करके रखना है प्रभु यीशु के साथ. Hallelujah. Restore. बचने का पुनर्निर्माण करना है. Invitation. This is from because of Abraham, Jesus Christ came and he gave us an invitation to restore our love, restore our blessings from God. अब्राहम के वंश से प्रभु यीशु आए, रिकंसाइल किए, उन्हें अपना मिलाप किया और वहां पर यीशु मसीह ने हमें क्या किया है? पुनः मिलाप कराया. If I talk to you and if I say you, have we experienced all the 7 blessings of Abraham? अगर मैं आपको कहता है ये सातों आशीष अब्राहम की आप पे मिली है, Some will say yes, some will say no. कोई कहेगा ये हाँ, कोई कहेगा ना. Some might experience only 3 blessings of Abraham. कोई सिर्फ 3 बातें जो आशीष है वो देखेगा. But see, the promises of God is for all of us. परमेश्वर की जो आशीष जो अब्राहम थी हम सभी के लिए है. Because God is giving you a chance of restoration, the locked blessing of your life will be released today. परमेश्वर एक मौका दे रहा है कि आप फिर से पुनर्निर्माण होए और परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है. God is going to reconcile you परमेश्वर आपका फिर एक बार मिलाप करना through चाहता है. Abraham's lineage. क्योंकि अब्राहम के द्वारा हमने सीखा है. 2 Corinthians 5:19 says,
दूसरा कुरिन्थियों 5:19 कहता है, that is in Christ God was reconciling the world to himself कि यीशु के द्वारा हमारा फिर से मिलाप हुआ है and not counting their trespasses against them and entrusting to us the message of reconciliation. इसलिए नहीं कि हम परमेश्वर से दूर रहे, पर परमेश्वर ने हमें उसके साथ क्या किया है, फिर एक बार मिलाया है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और as बहनों, we reflect on the prisms of blessing, जब हम वो प्रिज्म को देखते हैं आशीषों की, Jesus Christ is one light, यीशु मसीह एक मात्र उजाला है, God is one light, परमेश्वर एक मात्र उजाला है, and you are the prism. और हम उसके प्रिज्म हैं। Understand yourself as a prism. वो त्रिकोण की तरह हम अपने आप को समझे। When Jesus Christ enters your life as a light, अगर हम वो त्रिकोण के प्रिज्म के समान समझते हैं, तो यीशु मसीह आपके अंदर आता है the 7 blessings should get reflected in your life. और आप में से 7 आशीषें चमक निकलती है। Hallelujah. Why only Abraham can only experience the 7 blessings? Why not we can experience the 7 blessings today? सिर्फ अब्राहम वो 7 आशीषों को देख सकता है, हम भी वो 7 आशीषों के वारिस हो सकते हैं। Because the God of Abraham is my God. क्योंकि अब्राहम का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। Hallelujah. Say the Lord of Abraham is my God. कहिए अब्राहम का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। When God of Abraham can bless Abraham, जब अब्राहम का परमेश्वर अब्राहम को आशीष दे सकता है, the same God will bless me today. वही परमेश्वर मुझे भी आशीष देगा। I will experience the 7 blessings today in the house of God. ये 7 आशीषें मैं मेरे जीवन में पाऊंगा। Hallelujah. I will experience the blessing of abundance. मैं बहुतायत की आशीष को पाऊंगा। बोलिए, मैं बहुतायत की आशीष को पाऊंगा। Yes, I will experience the blessing of protection. मैं सुरक्षा की आशीष को पाऊंगा। I will experience the blessing of favor. मैं अनुग्रह की कृपा की आशीष को पाऊंगा। Say loudly, I will experience the blessing of multiplication. मैं बहुतायत की आशीष को पाऊंगा। I will experience the blessing of inheritance. मैं विरासत की आशीष को पाऊंगा। Hallelujah. I will experience the blessing of revelation. मैं प्रकाशन की आशीष को पाऊंगा। And the last, I'll experience the blessing of reconciliation. और मैं परमेश्वर से पूर्ण मिलन की आशीष को पाऊंगा। Because of you, people will come back and restores the love of God. और आप ही के द्वारा परमेश्वर के लोग आएंगे और परमेश्वर के प्यार को देखेंगे। Hallelujah. Because you will receive the 7 blessings, now you will act as a light in the life of others. जब आप वो आशीषों को पा लेंगे, तो आप एक ज्योत के समान रहेंगे और वो ज्योत चमकेगी और लोग उसमें से आशीष को लेंगे। When you will penetrate in somebody's life, when you will share your word, God will give them as a blessings in others' life. जब आप उसे बांटेंगे, तब परमेश्वर उन्हें भी आशीष करेगा और इस तरह से हम परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, understand this. समझिए, Jesus said, I am the light of the world. यीशु ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। Hallelujah. And Jesus said, I am the way and the truth and the light. यीशु ने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। Jesus also said, the truth will set you free. यीशु ने कहा, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। The truth is Jesus Christ alone. वो सत्य यीशु मसीह है। The truth is Jesus Christ. He is the light alone. वही ज्योति है, वही एकमात्र जीवन है। The light when it enters in our life. वो ज्योति जो हमारे जीवन में आती है, The 7 blessings of Abraham will come in our life. तो 7 आशीषें अब्राहम की मेरे जीवन में आती है। It will come in your life. वो आपके जीवन में आती है। Till now, if you have not experienced all the 7 blessings, अब तक अगर आपने वो आशीषों को नहीं जाना, today is the time for you to receive the 7 blessings. आज वो समय है कि वो 7 आशीषों को अपने जीवन में ले। Because till now you were not knowing the 7 blessings. अब तक वो आशीषों को आप नहीं जान रहे थे। But now when you know the 7 blessings, पर अब जब आपने ये जान लिया, and if you have a desire to receive the 7 blessings, और आपकी इच्छा है कि ये 7 आशीषें मैं लूंगा, God will help you to do it. तो परमेश्वर आपको करे। Let's stand in our place and pray to God. अपने जगह पे खड़े हो जाओ, प्रार्थना करें। When God is in His house today,
जब परमेश्वर अपने भवन में है, He is looking to you. वो आपकी ओर निहार रहा Let's है। pray together. आइए एक साथ हम प्रार्थना करें। If you want to receive the 7 blessings of God, अगर आप वो 7 आशीषें पाना चाहते हैं, see the life of Abraham, what Abraham did. पर अब्राहम के जीवन को देखो, अब्राहम ने क्या किया। Abraham was faithful. अब्राहम विश्वास योग्य था। Abraham was obedient. अब्राहम आज्ञाकारी था। He knew the plans of God. वो परमेश्वर की योजना को जानता था। Are you obedient? क्या आप आज्ञाकारी हैं? Are you faithful? क्या आप विश्वास योग्य हैं? Do you know the plans of God? क्या आप प्रभु के योजना को जानते हैं? If you know all these things, अगर आप ये सब जानते हैं, God will bestow His blessings on you. तो परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष को देगा। The favor of God on you. परमेश्वर आप पर कृपा दृष्टि करेगा। God will reveal His plans before you. परमेश्वर आपके लिए एक योजना को बनाएगा। God will reveal His plans. परमेश्वर आप वो योजना को आप पर प्रकट करेगा। What He wants, what He's looking, वो क्या चाहता है, वो किसके लिए देख रहा है। what He's requiring from your life, God will reveal it to you. परमेश्वर आपको बताएगा कि आप क्या आपसे वो क्या चाहता है। Do you want to be the one that you can listen the will of God? क्या आप वो एक है जो परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं। Do you want to be the one to understand the plans of God? क्या आप वो है कि प्रभु की योजना को समझना चाहते हैं। If you are the one, just speak to God now. Start speaking. अगर आप हैं तो परमेश्वर से बातचीत करें। If you want to receive the 7 blessings of God, you have to open your heart. अगर वो 7 आशीषों को आपको लेना है तो अपने दिलों को खोले। Don't let these 7 blessings just be knowledge for you, ये 7 आशीषों से सिर्फ ज्ञान नहीं होना चाहिए, but let you be the one to experience the 7 blessings of God today. आपके जीवन में आप अनुभव करें कि ये आशीषें हमारे जीवन में है। I want to be obedient, God. मैं परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी रहना Say, Lord, I want to be obedient to your word. प्रभु मैं तेरे साथ आज्ञाकारी रहना चाहता Lord, I want to walk faithfully with you. मैं आपके साथ कार्य करना चाहता हूँ। I want to walk faithfully with you. मैं आपके साथ विश्वास में चलना चाहता हूँ। I want to do the things which you command in my life, Lord. जो बातें तू चाहता है वो मैं करना चाहता हूँ। Come on, open your mouth, say. आइए अपने मुंह को This खोलें is the और time कहें। for you to speak to God. ये समय है कि प्रभु से कहे। In next 5-10 minutes we'll end. अभी 5-10 मिनट में हम समाप्त हो रहे But हैं। don't let the precious moment go away. पर ये अलौकिक, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। You want to receive favor of God in your family, say to God. अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में परमेश्वर की कृपा होना चाहिए तो कहे प्रभु से। God wants you to make the one for the reconciliation. प्रभु चाहता है कि आप पूर्ण परमेश्वर के साथ जुड़े। Through you, many family can be reconciled. आपके द्वारा आपके परिवार में आशीष आएगी। They will be restored in the love of God. वे परमेश्वर के प्यार में जुड़ेंगे। Because of you, आपके द्वारा you can act as a key of reconciliation. आप एक ऐसे व्यक्ति रहेंगे कि परमेश्वर के साथ उनके संबंध को जोड़ेंगे। आपके द्वारा लोगों के जीवन में मिलाप होगा। आपके द्वारा परमेश्वर के जीवन में लोगों के जीवन में मिलाप होगा। आपके द्वारा लोगों के परिवार बचे जाएंगे क्योंकि प्रभु के द्वारा आपका मिलाप होगा। रीबा सी खुंदे रे बेसी खंदारा बाबा। आइए अपने हाथों को उठाए प्रभु के लिए, ऊंची आवाज से कहे, प्रभु मैं विश्वास योग्य बनना चाहता हूँ, मैं आज्ञाकारी बनना चाहता हूँ प्रभु। यस लॉर्ड, कम ऑन, से इन योर वर्ड्स। आपके शब्दों में कहे, प्रार्थना कहे। आपकी प्रार्थना आप कर सकते हैं, प्रभु के लिए आप पुकार सकते हैं। रीबा सी खुंदे रे बेसी खंदारा बाबा। जब अब्राहम अपने पिता के घर से निकला उसके पास कुछ नहीं था। आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, आज आपके पास कुछ है नहीं, वो मायने नहीं रखता। पर अब्राहम के पास परमेश्वर ने सब कुछ दिया। जो अब्राहम को सब कुछ दे सकता है वो आपको भी दे सकता है। उसको इतना भरपूरी में दिया कि उसके पास भरपूर था, वो लोगों को देने वाला बना। उसको सुरक्षा दिया राजाओं से। खुदा आपके परिवारों को सुरक्षा दे। गॉड विल गिव यू प्रोटेक्शन। गॉड प्रोटेक्टेड हिम। उसके फिजिकल को सुरक्षित रखा प्रभु ने। कम ऑन, प्रे प्रे प्रे। आइए धन्यवाद दे प्रभु को, धन्यवाद दे, कहे प्रभु धन्यवाद यीशु। This is the very precious time what we have spent now. Yes. No other name than the name of Lord Jesus. Lord, I want to be the one as a prism. Lord, I want you to come in my life.
The light of Jesus come in my life. The truth of Jesus come in my life. Riba si khondo robo si khandara baba. Hallelujah, Jesus. मदद सहायता कर प्रभु. थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद यीशु, Jesus, Jesus, धन्यवाद Jesus, Jesus. धन्यवाद यीशु नाम, यीशु नाम. धन्यवाद. अपने लोगों को स्पर्श कर खुदा. आंसू को पोंछ प्रभु. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस. कमजोर जीवन में सहारा दे प्रभु. बिखरे घरों को बना दे पिता. धन्यवाद यीशु. दिल से प्रार्थना करे मेरे प्रिय. दिल से प्रार्थना करे. थैंक यू लॉर्ड. खुदा एक एक के हृदय को जांच रहा है. आपके एक एक प्रार्थनाओं को सुन रहा है. थैंक यू. 7 के 70 गुना आशीष देने वाला परमेश्वर आपके साथ है. यस. री बाबा बाबा बाबा. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The two things God is speaking to me for. Two things God is speaking to me now. दो बातें परमेश्वर कह रहा है. God is speaking to me. There are few people who have gone away from God. कुछ लोग हैं जो परमेश्वर से दूर हो चुके हैं. And God is speaking to me for some people who will experience all this. 3 people who will experience the 7 blessings of God. और यहाँ पे परमेश्वर को कह रहा है कि 3 लोग हैं जो परमेश्वर की ये 7 आशीषों को लेना चाहते हैं. They are very eager to receive the 7 blessings. वो बहुत उत्सुक है कि ये 7 आशीषें मुझे मिले. And there are 2 people who have gone away from God fully. और 2 लोग हैं जो परमेश्वर से दूर हो चुके हैं. And when you are listening to my voice, और जब आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे when I हैं, am talking to you this, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, when I am talking to you this, जब मैं आपको ये कह रहा हूँ, you are feeling that this is me. और तो आपको लग रहा है ये मेरे लिए है. And your inner voice is saying it's not you. और आपकी दूसरी आवाज कह रही है कि ये मैं नहीं हूँ. But don't listen to the inner voice, listen to the voice of God. परमेश्वर की आवाज को सुनो, अपनी आवाज को ना सुनो. I want to pray for these 5 people in 3 minutes. ये 5 लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ. If you are the 2 who have got away from God, just come now right away in front. अगर आप में से कोई लोग हैं जो 2 लोग हैं जो यहाँ जो प्रभु से अलग हो चुके हैं, वो यहाँ है, वो सामने आ जाए. Just in the presence of God, come in front. Yes. वो सामने आ जाए. Okay, yes, come brother, come. Come church, let's pray for our people. Let's pray with faithfulness. आइए हम प्रार्थना करें. Raise your hands. के साथ. खुदा के लिए अपने हाथों को उठाओ. Yes, thank you. When you come to God, जब आप प्रभु के पास आते हैं, my brother, this word has touched you today. मेरे भाई, ये वचन ने आपको छुआ है. You want to experience the 7 blessings of God. आप चाहते हैं कि वो 7 आशीषें परमेश्वर आपको दे. But you have seen your life in the past. पर आपके जीवन को आपने पुराने जीवन को देखा. But in the spirit of Lord which we are walking now, पर परमेश्वर की आत्मा में जब आप चल रहे हैं, I experience God is very happy with your decisions which you are taking right now. परमेश्वर आपके हर निर्णय पे खुश है. और परमेश्वर आपसे As you have recommitted your life, जब आपने अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित you किया, have recommitted. फिर एक बार समर्पित किया, My brother, you have started your life again with God. आपने अपने जीवन को प्रभु के साथ फिर बनाया. God is going to give you more things which you have not seen from before. परमेश्वर आपको और वो आशीष दे रहा है जो पहले आपने नहीं देखी. The blessings which you have heard, God is going to experience. You will experience those blessings, brother. जो आपने आशीष सुनी है, परमेश्वर आपका अनुभव कराएगा. In the presence of the Lord, God is saying to me this. प्रभु अपने उपस्थिति में ये कह रहा है. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया. There is power in the name of Jesus. हालेलुया. Jesus has already entered in your life. यीशु मसीह आपके जीवन में आ चुके हैं. You are just coming up and God is giving you strength to stand again. आप वो उभर रहे हैं और परमेश्वर आपको सामर्थ दे रहा है. God is giving you strength again to stand for God. परमेश्वर सामर्थ दे रहा है कि आप उसके लिए खड़े रहें. Yes, God will make you more stronger than before this time. प्रभु आपको और मजबूत बनाएगा पहले से. Yes, God will make you more stronger. प्रभु Raise आपको your और hands. मजबूत करेगा. Yes, God will make you more stronger. The things which you have not experienced, God will give you those blessings also. जो बातें का अनुभव आपने नहीं
किया प्रभु आपको वो भी देने वाला Father, I pray in the name of Jesus for my dear brother. प्रभु मैं आपके नाम से इस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ As he has come again in your presence. जब ये आपके सन्मुख आए हैं Father Lord, I pray in the name of Jesus. प्रभु मैं यीशु के नाम से कहता हूँ As the things which was in the past, you wipe it away in the name of Jesus. जो पुरानी बातें हैं, उसे तू छोड़ दे पर भी Lord, he has started and committed a new life with you. प्रभु ने एक नया जीवन आपके साथ Oh, लगाया Rabba है। Sikhenderebe, Lord, with your love, प्रभु आपके प्रेम के साथ you build a commandment and a covenant with my brother. आप एक आज्ञा को बांध वाचा को बांध इस भाई के साथ Lord, you will never leave him. आप उसे कभी नहीं छोड़ेंगे Lord, you never forsake him. आप उसे कभी त्यागेंगे नहीं You always walk with him, Lord. आप उसके साथ चलेंगे पर He is no longer alone in the name of वो Jesus. अकेला नहीं है पर He is no longer alone in this world. वो अकेले नहीं है इस जीवन में Lord Jesus, you are there to listen to his voice. प्रभु आप है उसकी आवाज को सुनने के You are लिए there to listen to his prayers. आप है उसकी प्रार्थना को सुनने You के are there लिए to hold his hands, Lord. और परमेश्वर आप उसके हाथ को पकड़ कर As this brother has recommitted his life in the name of Jesus. जब उन्हें अपने जीवन को फिर एक बार परमेश्वर के सन्मुख I समर्पित किया clean है all the obstacles in the way of the spiritual life. और मैं हर प्रकार के अड़थड़े को यीशु के नाम से दूर करता हूँ A blessed and a strong spiritual life I give you in the name of Jesus. एक अद्भुत और एक अच्छी आशीष परमेश्वर के नाम से हम आपको देते हैं I bless these hands in the name of Jesus. इन हाथों को हम आशीषित करते I हैं give them success. इन हाथों में यश I give them favor in the name of Jesus. परमेश्वर की कृपा की आशीष को हम देते These हैं hands to multiply in the name of Jesus. ये हाथ दुगनी आशीषों को ले And bless in the name of Jesus. और लोगों को आशीषित करे In the name of Jesus I pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते Amen. हैं आमीन Thank you. Father, I pray for this daughter in the name of Jesus. प्रभु इस बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं Your life, God has already called you earlier, प्रभु ने आपकी आवाज को सुना है but you have gone away from God. पर आप परमेश्वर से दूर हो चुकी हो After many things, you have come again in the house of God. कई समय के बाद आप प्रभु के भवन में पाई जा रही है Just because of your family members said you come today. सिर्फ आपके लोगों ने कहा इसलिए आप आई हो You never wanted to come because some of the other reasons Satan was not letting you to come in the house of Lord. क्योंकि कुछ कारणवश से शैतान आपको यहाँ आने नहीं दे रहा था Right? Is that true, Roshni? ये सही है क्या You wanted to come, but some reasons were there. Satan was pulling your leg. आप आना चाहती थी पर कुछ कारण थे कि परमेश्वर शैतान आपको यहाँ नहीं ला रहा था You have a desire for God, आपके पास प्रभु की सेवा करने का एक इच्छा है and God has a will and plan for you. और प्रभु के पास एक योजना है आपके लिए Every time you rebuild, but you go down. हर समय आप उभरती हो फिर गिर जाती हो You try to stand, still you go down. आप खड़ी होती हो फिर गिरती हो But in the name of Jesus today, पर यीशु के नाम से आज when you say, Lord, I want to restart again and come with you again, जब आप कहती हो प्रभु मैं फिर एक बार अपने आप को समर्पित करके चलना चाहती हूँ the Lord of Abraham is standing in front of you today. अब्राहम का परमेश्वर आपके सन्मुख खड़ा है He is walking with you today. वो आपके लिए खड़ा है When you have come forward, जब आप आगे आज you have said, Lord, I don't want to be in my old things. I want to start my new journey. जब आप कहती हो कि मुझे पुरानी बातें भूल कर नई बात चालू करती The हूँ new journey God will give you from now. एक नई यात्रा आज प्रभु तुझे दे रहा है Lift your hand for Jesus. यीशु के नाम से अपने Say, हाथ Lord उठाएं। Jesus Christ, प्रभु यीशु से कहे I want to give my life to you, Jesus. प्रभु मैं मेरा जीवन तुझे देना चाहती हूँ कहे Lord, I will not walk on my old ways. मैं पुरानी राह पे नहीं चलूंगी मैं तेरी आवाज सुनूंगी खुदा. मैं अपने आप को त्याग कर तेरे लिए आगे बढ़ूंगी प्रभु. यस मेरे गुनाहों को क्षमा कर प्रभु. मेरी लापरवाही को शर्मा कर खुदा. In the name of Jesus, I pray for you, Lord. Lord, in the name of Jesus, I pray for this daughter right now. All the obstacles and the plans of Satan be removed in the name of Jesus. The power of God enter in his life. Let the light of Jesus Christ be seen in his life. As she has recommitted her life, she is your daughter. In the name of Jesus, I take her for your kingdom. I take her for your glory, Father. Let your power enter in her. And let her life be a blessing for his family, a blessing for her church, a blessing for her nation. Lord, I bless this hand to be strong
I bless this mouth to read the word of God. Father Lord, in the name of Jesus, as she reads your word, let your word dwell in her. जब वो तेरे वचनों को पढ़े खुदा, तेरे वचन उसके जीवन में रहने पाए, वो वचनों के शब्द उसके जीवन में कार्यों को करने पाए, उसकी प्रार्थनाएं पुकार तू सुनने पाए पिता। जितने लोगों ने इसे तिरस्कार किया है खुदा, वो लोग उसे स्वीकार करने पाए प्रभु। इन द नेम ऑफ जीसस आई प्रे। जितने लोगों ने तुझे गिराया है खुदा, उतने ऊंचाइयों पर बेटा तुझे ले जाएगा। जब खुदा बोलता है तो सब कुछ नया करता है। री खानदारा बाबा बाबा, तेरे हर आंसू का प्रतिफल प्रभु तुझे यश में देगा। तेरे हर आंसू के बदले खुदा तुझे आनंद देगा। जब खुदा अब्राहम के ऊपर अपनी योजनाएं प्रकट कर सकता है, खुदा तेरे जीवन की योजनाएं तुझे बताएगा। I pray Lord in the name of Jesus, bless her, bless her, give us strength, उसे ताकत दे प्रभु, उसे सामर्थ्य दे प्रभु। In the name of Jesus I pray, amen, 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 hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus, Father. Church, let's pray together. Hallelujah. Yes. Thank you, Father, Holy Spirit. Yes, Jesus. Glory to you, Father. Glory to you, Father. Come on, keep praying, keep praying. Your prayers is affecting our church. आपकी प्रार्थना के द्वारा लोगों के मनों में जीवनों के कार्य को कर रहा है खुदा। Father, I pray for our sister in the name of Jesus. As she is walking with you, Lord, she is experiencing your grace. The things which is impossible, only that's possible because of you. जब सारे दरवाजे बंद हो जाते खुदा, तेरा दरवाजा हमारे लिए खुला रहता है। खुदावंद यीशु के नाम से प्रभु जी, तू अपनी योजनाओं को मेरी बहन के ऊपर दिखा। Show your peace. The things which are up and down in the name of Jesus, I come against you. The things which are up and down in the life, I come against all those things in the name of Jesus. The name of Jesus is powerful name. Father, I pray, let the odds be even in the name of Jesus. जो कुछ भी प्रभु जी तैस बहस है, जो कुछ नाश है, वो नाश को खुदावंद तू फिर से क्रिएट कर। Many things in our life happens because, I want you all to listen, God breaks you completely sometimes so that He can rebuild you fully. अगर एक बर्तन माटी का बिगड़ जाता है, माटी फेंकते नहीं, माटी को फिर से उसे साफ करके फिर से बनाते हैं। अगर आज कुछ बिगड़ाहट है, खुदा आपके जीवन में उसे फिर से बना रहा है। Sometimes decisions, sometimes priorities, sometimes fellowship के कारण हम बिगड़ जाते हैं, but God is making it new. If you have the heart, God is going to make it new. When you have come to God, Lord, I have gone away from you, I want to tell you, God is always with you. हम खुदा से दूर होते हैं मेरे प्रियो, खुदा हमसे दूर नहीं होता। ये समय खुदा ने आपके जीवन में दिया है कि आप प्रभु के और करीबी की एक्सपीरियंस करें। I want to pray for you. Lord, I pray in the name of Jesus, help her. दाऊद अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाता था, खुदा उन्हें सहायता तुझसे मिलती थी।
जब ये प्रार्थना करे खुदावंद यीशु के नाम से उसे सहायता मिल जाए, जब ये तेरे नाम को पुकारे, जब कुछ समझ में ना आए पिता परमेश्वर हम कहाँ जाए कहाँ देखे किसी और जाए, खुदा ये तेरे नाम को पुकारे और यीशु के नाम से उन्हें सहायता मिलने पाए। मेरा तो तू ही सहारा है खुदा, इन हाथों को यीशु तूने थामा है प्रभु, किसी मनुष्य ने नहीं थामा है प्रभु। यीशु के नाम से इन हाथों को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तू आज थाम ले। जब तू इन हाथों को थामेगा खुदा दुनिया की कोई ताकत इसे गिरा नहीं सकती। यू आर नॉट अलोन, यू आर नॉट अलोन। गॉड इज स्टैंडिंग विथ यू फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। यू विल हैव अ डिफरेंट वॉकवे, यू विल हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, यू विल एक्सपीरियंस द फेवर ऑफ गॉड। जो काम बनते नहीं आज यीशु के नाम से आपके जीवन में आज से बनना चालू होंगे, आपके विश्वास के द्वारा। रिसीव करें। जो आपने देखा नहीं सुना नहीं, गॉड वॉन्ट्स अ न्यू स्टार्ट विथ यू सिस्टर। गॉड वॉन्ट्स अ न्यू स्टार्ट विथ यू, विथ अ न्यू डेडिकेशन, विथ अ न्यू स्टार्ट। खुदा बोल रहा है आपको फिर से स्टार्ट करना है। द टाइम इज वेस्टिंग अ lot of time, a good time of your life era has passed away. Now is a great time to take a new decision, and God will keep you firm in it. In the name of Jesus I pray, amen. Thank you Jesus. This will be the last person we will be praying. After that we have to pray for everybody. Father, I pray in the name of Jesus. Let's raise our hand and stand together. जब कलीसिया एक दूसरे के लिए प्रार्थना करती है, हम एक दूसरे की आत्मिक उन्नति के कारण हैं मेरे प्रियो। हम एक दूसरे के आत्मिक उन्नति के कारण बनने पाए। कम ऑन, अपने हाथों को उठाए, पिता परमेश्वर को धन्यवाद दे, धन्यवाद दे परमेश्वर को। से थैंक यू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू यू फादर, ग्लोरी टू यू मास्टर। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। खुदावंद यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। When you are here, Alap, I see some of the work of your business is stuck. I don't know how. If it is stuck, today it will be released in the name of Jesus. जो रुका है यीशु के नाम से खुलेगा। And you are more worried how it is going to happen again, how it is going to happen. I will tell you, जब अब्राहम के अपने बेटे को लेकर वो पर्वत पे गया, वो भी ऐसी चिंता में था, ये क्या होगा, मेरा एक लौता बेटा वो भी प्रभु मांग रहा है। पर खुदा उस एक के 1000, 10,000, लाखों, करोड़ों करना जानता है। Where you are stuck, God will make a way from there. जहां हम रुके हैं वहीं से खुदा मार्ग निकालना चाहता है। इसलिए लाल समुद्र के आगे वो 2 भाग करना जानता है। But don't worry, the love of God is the same for you today, because you are in the presence of the Lord. आप प्रभु के घर में हो और आपने जब सामने आकर कहा प्रभु मैं तेरे साथ और गहराई से चलना चाहता हूं, खुदा आपके साथ आपकी अपनी उपस्थिति और गहराई से दिखाएगा। In your business, I release the favor of God. I release the favor of God in your business. And there are some personal questions you are stuck, but God will give you wisdom. God will give you wisdom to take the correct decision on that time. Father, in the name of Jesus, I pray for Alap, Lord. The heart you have given him is a heart of worship. The heart you have given him is a beautiful heart, Lord. He wants to stand for you, Master. He wants to do the things. Lord, I pray to reveal your plan to him. तो अपनी योजनाओं को खुदावंद अपने बेटे के ऊपर प्रकट कर। तू अपनी इच्छाओं को अपने बेटे के लिए बता खुदावंद, तू उससे क्या चाहता है। खुदावंद किसी मनुष्य से सुनने से बेहतर है कि तेरी आवाज सुनना प्रभु। तेरी उपस्थिति में जब वो बैठे खुदावंद यीशु, तो अपनी आवाज उसके इन कानों में दे प्रभु। खुदावंद जो भी प्रश्नों को पिता परमेश्वर उसके जीवन में मैं देख रहा हूं खुदा,
यीशु के नाम से उन सारे प्रश्नों का उत्तर तू उसे दे मेरे पिता, क्योंकि तू ही तो है खुदावन जो हमारी सारी आवाजों को सुनना है। अगर तू ना सिखाए तो हमें कौन सिखाएगा यीशु। पिता तू अगर आलाप को नहीं चलाए तो हमें कौन चलाएगा। आलाप को चलाने वाले खुदा तू है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं खुदा आलाप के द्वारा उसके घर में बड़ी आशीष को दे। Because of him let our church be a blessing, Lord. In the name of Jesus, all the tears are wiped away. A new start with a new fresh anointing over you, Lord. Fresh anointing, Master. Everything is perfect, Master. The things which is imperfect, I make it perfect in the name of Jesus. जो चीजों में प्रभु जी सुधार की जरूरत है तू बेटे को बता। Because this life is yours. And what he wants to do for you is a very great thing, Lord. Let it happen. Let it happen, Holy Spirit. पवित्र आत्मा इस बच्चे के साथ रहे। जब वो अपने हाथों से कामों को करे, तेरा फेवर, तेरा ग्रेस इन हाथों में दिखने पाए। I bless this hand with the blessing of multiplications in the name of Jesus. खुदावन यीशु के नाम से जो पत्थर है, जो स्टक हुआ है, यीशु के नाम से मैं उसे रिमूव करता हूं। I remove the obstacles. The obstacles, I see an obstacle getting stuck and the blessings are stopped. वो ऑब्स्टिकल जैसे आपके जीवन से रिमूव होगा, खुदा की भरपूर आशीष आपके जीवन में आना शुरू होगी। You have to pray to get the obstacles away. वो हर्डल, वो रुक जाए, वो रुकावट यीशु के नाम से दूर हो जाए, क्योंकि प्रभु की आशीष आप पर आने के लिए बस रुकी ही मैं देख रहा हूं। Your spiritual life you have to make it more strong, बेटा। Make your spiritual life more strong in the presence of Lord. And the things which you are having in your heart, God will fulfill in the name of Jesus. I pray. Amen. God bless you. Father, I pray for our dear uncle, Lord, in the name of Jesus. Today you have touched him. आज आपने इनके हृदय को स्पर्श कर लिया प्रभु। आज उनकी इच्छाओं को आपने पूरा किया खुदावन। प्रभु आपने इनकी प्रार्थनाओं को सुना यीशु के नाम से। प्रभु जी इनके जीवन में खुदावन, ये अपने परिवार में तेरी आशीषों को देखना चाहते हैं। ये अपने जीवन में खुदावन, अपने परिवार में सब कुछ देखना चाहते हैं खुदा। जो कोई भी वजह से प्रभु जी वो अड़थंगे, रुकावटें हैं, आज तूने उसे यीशु के नाम से दूर कर दिया पिता। खुदावंत हमारे अंकल के जीवन को तू ब्लेस कर प्रभु, आशीषित कर खुदावंत। जो तूने प्रार्थना का जीवन दिया खुदावंत, वो प्रार्थना में और सामर्थ आने दे और आत्मिक गहराई आने दे खुदावंत। जब वो कलीसिया के लिए, पासबानों के लिए, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा, वो प्रार्थना में सामर्थ होने दे प्रभु। इनके परिवार में यीशु के नाम से तेरी शांति में देता हूं खुदावन। और खुदावन जो मैं देख रहा हूं प्रभु जी, बहुत सारी अड़चने हैं खुदावन, यीशु के नाम से वो अड़चने दूर हो जाए। परिवार में तकलीफ ये नहीं खुदावन दूसरे लोग कर रहे हैं खुदावन, यीशु के नाम से उन लोगों के मुख को मैं बंद करता हूं जो आपके परिवार में अड़थंगे ला रहे हैं। बहुत सारी चीजें जो आपके परिसर में मुझे आजू बाजू दिख रही है खुदा, यीशु के नाम से आई मेक ऑल द थिंग्स इन देयर फेवर। आपके हित में उन सारी बातों को मैं यीशु के नाम से लेता हूं। खुदा की शांति आपके साथ बनी रहे, खुदा का प्रेम आपके साथ बना रहे, यीशु के नाम से आमीन। आइए हम अपने हाथों को उठाएंगे। उस प्रभु की प्रार्थना को हम आप सभी के लिए मैं करना चाहूंगा, उन 7 आशीषों के लिए। सी द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के कार्य को देखे, खुदा ने कितने लोगों को बोला और कितने सारे लोगों ने प्रभु के वचन को ग्रहण किया। अब मैं प्रार्थना करने वाला हूं उस सारी अब्राहम की 7 आशीषों के लिए जो अब्राहम को परमेश्वर ने दी। क्या वो आशीष पाना चाहते हैं? क्या वो आशीष के हकदार आप होना चाहते हैं? आज पुकारे उस प्रभु को कि खुदा मेरे जीवन में तू वो आशीषों को दे जब तू अब्राहम के जीवन में दे सकता है। मेरे जीवन में भी खुदा तू वो आशीषों को दे। क्यों केवल अब्राहम प्रभु जी, मैं क्यों नहीं? मेरे जीवन में क्या कमी है पिता, उस कमी को मेरे पिता तू दूर कर।
आइए अपने हाथों को उठाए रखें मेरे प्रियो। कोई बात नहीं, थोड़े दर्द को हम सहन कर सकते हैं, पर परमेश्वर के लिए उसकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों पर आते हैं खुदा बाप। आज हमने सीखा प्रभु जी अब्राहम के उन 7 आशीषों के बारे में। प्रभु अब्राहम के जीवन को हमने देखा, वो एक विश्वास योग्य, एक आज्ञाकारी जीवन है पिता परमेश्वर। खुदावन यीशु के नाम से आज हम प्रत्येक का जीवन जिनने हाथ उठाए हैं, यीशु के नाम से आज्ञाकारी जीवन हो, यीशु के नाम से विश्वास योग्य जीवन हो, यीशु के नाम से इनके पैरों में तेरी सामर्थ आए, इनके पैर डगमगाए नहीं पिता। जिस प्रकार से अब्राहम ने तेरी एक आवाज सुन के प्रभु अपने जीवन की राह बदल दी, आज वैसा विश्वास, वैसी आज्ञाकारिता इन सब पे तू उंडेल प्रभु, इन सब पे हमारे पूरी कलीसिया पे उंडेल खुदा। जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उन पे उंडेल प्रभु। खुदावन यीशु के नाम से I bless them with the blessing of abundance। मैं बहुत आयत की आशीष के लिए इनको मैं आशीषित करता हूँ, मैं बहुत आयत के सुरक्षा के लिए इन्हें आशीषित करता हूँ खुदा, तेरी कृपा के लिए खुदावन, और खुदावन तेरी बढ़ोतरी के लिए, दुगनी बढ़ोतरी के लिए यीशु के नाम से इन हाथों को आशीषित करता हूँ खुदा। ओ खुदावन विरासत में मिलने वाली आशीषों के लिए इन्हें आशीषित करता हूँ खुदावन। ओ खुदावन तेरी योजनाएं जानने के लिए खुदावन, प्रगटीकरण के आशीषों के लिए मैं इन्हें ब्लेस करता हूँ खुदा। ओ खुदावन यीशु के नाम से मिलाप की आत्मा से मैं इन्हें ब्लेस करता हूँ प्रभु। ये जहां भी जाए अगर वहां चीजें टूटी हो, यीशु के नाम से इनके द्वारा बन जाए पिता। प्रभु जी इन 7 आशीषों को मैं अपनी कलीसिया को ब्लेस करता हूं प्रभु। तेरी आशीषें हम पे बनी रहे। तू एक रोशनी है, तू हम में जब आएगा खुदा हमें 7 रोशनी निकलने पाए, वो 7 आशीषें होने पाए यीशु के नाम से। सारा अनुग्रह मान महिमा आपकी होने पाए पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे पासबान के लिए खुदावन, उनकी हेल्थ के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। हम तेरी चंगाई की सामर्थ इस स्थान से वहां भेजते हैं। जो भी उनकी शारीरिक बीमारी है यीशु के नाम से दूर हो जाए। यू गिव हिम स्ट्रेंथ, उनके शरीर में आप ताकत दीजिए खुदावन। पिता परमेश्वर सुंदर समय आपने हमें दिखाया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे भवन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं खुदा उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। एक एक जीवन, एक एक परिवार में तूने अपनी आशीषें दी है, तूने अपनी कृपा दिखाई है खुदावन। हम जब दोबारा मिले तेरी बड़ी गवाही को सुनने पाए, यीशु के नाम से मांगते पिता, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाए उन प्रभु के लिए, धन्यवाद दे उस खुदा को। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रियो कि आज हमने ब्रदर के द्वारा